السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بے انتہا شکریہ تمام آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا، آپ لوگوں کی آمد کا بے انتہا شکریہ۔ جو گفتگو میں کرتی ہوں اللہ اور رسول کی، اس کو آپ سننے کے لیے روز میرے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آج جو قصہ، آج جو کہانی جس کا تذکرہ ہم اپنے آج کے اس سیشن میں کریں گے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، ہر قوم پہ اللہ کے نبی اور ان کا پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پیغام دیا، اور پھر حق کی جو گفتگو تھی، حق کی جو بات تھی، وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کی۔ مگر بہت سی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے ان انبیاء کا، ان پیغمبروں کا ذکر جو وہ کرتے تھے، جو تبلیغ کرتے تھے، جو وہ دعوت دیتے تھے، اس کو حاصل نہ کیا، اور بلکہ نہ صرف حاصل نہ کیا بلکہ ان تمام انبیاء کو بہت نعوذ باللہ برا بھلا بھی کہا، ان کی تضحیق بھی کی، بہت مشکلات بھی کی، اور پھر بہت ساری قوموں کے اوپر مختلف ادوار کے اندر مختلف عذاب آئے۔ حضرت یونس کی قوم جو تھی وہ ذرا منفرد اس حساب سے اور اس حوالے سے تھی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پہ کی تبلیغ کی، اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، اپنی قوم کو وہ میسج دیا جو اللہ کا میسج تھا، تبلیغ کی، اللہ کا پیغام دیا، تو ان کی قوم نے بھی باقی کی قوموں کی طرح، اقوام کی طرح جو ہے وہ ان کی اس تبلیغ کو سیریسلی نہ لیا، اور بہت زیادہ اس حوالے سے جسے کہتے ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں دی، اور نعوذ باللہ برا بھلا بھی کہا۔ جب وہ اپنی اس قوم کو تبلیغ کر چکے اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی کچھ نہ سنی، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ یوں کہ وہ ہجرت کر کے وہاں سے، ان لوگوں سے ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ جب وہ وہاں سے چل پڑے اور وہاں وہ جگہ چھوڑ دی انہوں نے، تو وہ ہجرت کر کے کہیں اور جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ وہ کہاں پر گئے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر ان کے ساتھ کیا بیتی انشاءاللہ وہ ہم بات کریں گے۔ مگر یہاں پر ہم رک کے سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی کہ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، سوائے یونس کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ان کو خاص مدت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ حضرت یونس نے جب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب تبلیغ کی تو اس قوم نے نہ سنا کچھ، نہ کچھ سمجھا۔ مگر جب حضرت یونس وہاں سے وہ بستی چھوڑ کے وہاں سے جب چلے گئے تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہونے لگا۔ جو ہی اللہ کے عذاب کے آثار اس قوم کو نظر آنے شروع ہوئے تو حضرت یونس کی کہی ہوئی وہ تمام باتیں، وہ اللہ کے حوالے سے ہدایات، وہ تبلیغ ان کے اذہان میں ایک دفعہ پھر گردش کرنے لگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب ریئلائز کیا کہ اب یہ عذاب جو ہے ہم پر مسلط ہونے والا ہے، جس سے آگاہ کیا تھا حضرت یونس نے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے مل کر ایز اے قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارشات کی، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، کہ جس کے بعد وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ اللہ کے نبی جب وہ تبلیغ کر چکے، اس کے بعد وہ عذاب آ گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ تو وہ ہجرت کر کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ حضرت یونس جو ہیں وہ سمندر کی طرف، ساحل سمندر کے پاس گئے، تو وہاں پر انہوں نے ایک کشتی دیکھی، وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور جب وہ اس کشتی میں سوار ہوئے کچھ دیر کشتی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف اس نے جب رخ کیا، جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچی تو کیا ہوا، کشتی تھوڑی ڈولنا شروع ہو گئی، کہ اس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ تھے، تو یوں لگا کہ جیسے کشتی جو ہے وہ
शायद डूब ना जाए। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने ये फैसला किया कि देखें, लग रहा है कि ये कश्ती के अंदर लोग ज़्यादा हैं, अगर इसमें से चंद लोग ना उतरे और अगर एक शख्स भी अगर इस कश्ती से उतर गया तो ये कश्ती बैलेंस हो सकती है। अब हर कोई ये सोचने लगा कि तमाम लोगों की जान बचाने के लिए मैं क्यों अपनी जान दूं, मैं क्यों अपनी जान दूं तमाम लोगों को बचाने के लिए। तो तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी एक शख्स ने अपनी जान ना दी तो जितने भी लोग हैं इस कश्ती में वो सब के सब तबाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा भाई ये तो जिंदगी और मौत का मसला है इतने ज्यादा लोगों के लिए, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम कुरानदाजी करते हैं, तमाम लोगों के नाम डालते हैं, एक बंदे का नाम निकालेंगे, जिस बंदे का नाम निकलेगा हम उस शख्स को वो जो है वो समंदर में छलांग लगा देगा या हम उसको समंदर के हवाले कर देंगे ताकि बाकी लोगों की जान बच जाए। एनीवे ये फैसला हुआ। पहली दफा जब कुरानदाजी हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का उस कुर्रे में नाम निकला। तो जब उन्होंने खोला तो वहां पर मौजूद लोगों ने कहा भाई ये शख्स तो बहुत ही ज्यादा परहेजगार, अल्लाह का मुत्तकी बंदा है, इतना अच्छा इंसान है, हम नहीं चाहते कि इस शख्स को हम समुंदरों की लहरों के हवाले कर दें। फिर उन्होंने एक दफा और कुरानदाजी की। फिर जब उन्होंने दूसरी दफा कुरानदाजी की तो किसका नाम निकला? यूनुस अलैहिस्सलाम का। और उसके बाद हजरत, आपको मैं बताऊं कि ये जिस कुरानदाजी की हम बात कर रहे हैं इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुरान मजीद में भी कर रहा है। तर्जुमा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, उसका तर्जुमा है बिला शुबा यूनुस नबियों में से थे, जब वो कश्ती में पहुंचे और कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। बहरहाल आप ये सोचो कि उस वाक़े का और उस कुरानदाजी का तस्करा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कर रहा है। सो जब तीसरी दफ़ा भी नाम निकला तो बगैर किसी से कुछ कहे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर के लहरों के हवाले अपने आप को कर दिया। जब उन्होंने अपने आप को समंदर की लहरों के हवाले किया तो एक बहुत बड़ी मछली ने एक लम्हा नहीं लगाया और अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब उस मछली ने निगल लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मछली को ये हुक्म दिया कि तुमने इसके गोश्त और तुमने इसकी हड्डियों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। क्यों? क्योंकि ये मेरा नबी है और इस नबी को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा रिस्क नहीं है, ये आपका खाना नहीं है, इसलिए आपने उनको नहीं कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर उन्होंने क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा किया, शुक्र अदा किया कि ए रब तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरी इबादत कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तनो तन्हा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तूने ये मौका दिया कि मैं इस तन्हाई में तेरी इबादत कर सकता हूँ। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सैर करवानी शुरू की और जहाँ जहाँ वो मछली हज़रत यूनुस को सैर करवा रही थी वहाँ वहाँ जो भी नबातात थे, जो भी जमादात थे, जो भी वहाँ पर मछलियाँ थी, तमाम लोग जो थे वो तमाम जितनी मखलूक़ात थी, चाहे मछलियाँ थी, छोटी बड़ी मछलियाँ थी, चाहे पत्थर थे, चाहे वहाँ पर छोटे छोटे पत्ते थे, सबके सब पता क्या कर रहे थे आपको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह कर रहे थे। सुभान अल्लाह कोई कह रहा था, कोई जिस तरह आप नमाज पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह पढ़ती हो, एग्जैक्टली उस तरह से कोई मछली सुभान अल्लाह कर रही थी, कोई मछली अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी, कोई पत्थर जो है वो अल्लाहु अकबर कह रहा था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। जब हजरत यूनुस ने हर चीज़ को सजदा करते हुए देखा, हर चीज़ को तस्बीह करते हुए देखा, अल्लाह की हम्द व सना करते हुए देखा, तो फिर वो दुआ पढ़ी जो आज के दौर में भी फिर आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये तालीम दी कि जब भी इंसान किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, तो आयत करीमा पढ़े। और वही अल्फाज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़े। पता है वो क्या थे? ला इलाहा इल्ला अंता
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तो हज़रत यूनुस ने जब ये दुआ की और उसका तर्जुमा क्या है, और मछली वाले हज़रत यूनुस को याद करो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, और मछली वाले हज़रत यूनुस को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर काबू ना पा सकेंगे। अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे। अंधेरे में अल्लाह को क्या पुकारा? उनके अल्फाज क्या थे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, तू मुनज़्ज़ा है, और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। एक अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब एक मुश्किल में आए, जब मुश्किल में घिर गए, तो उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की, और ये दुआ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये दुआ आगे भी बढ़ती है। और दुआ ये है, अल्लाह सुब्हान व तआला आगे क्या फरमाता है, अल्लाह का जवाब क्या आता है इस दुआ के ऊपर, कि हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात दे दी। ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं, और हर मोमिन, हर ईमान वाले का यही सोच के साथ, इसी यकीन के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें निजात अता फरमाए। हम हमेशा दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सफीना निजात अता करना, ए मालिक हमें निजात की कश्ती अता करना, हम उस कश्ती निजात में बैठ जाएं, और अल्लाह हमें अपने उन तमाम गुनाहों से बख्श दे, हमें उन तमाम मुश्किलात से निकाल दे कि जिनमें हमने ख़ुद को घेर रखा है। और ये जो खूबसूरत दुआ है, इसको अपनी हर मुश्किल में, अपनी हर परेशानी में, अपनी हर गम में, अपने हर दुख में जब हम पढ़ते हैं, इस यकीन के साथ कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को आसानी देने वाला है, हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। जब एक नबी मुश्किल में होता है तो वो इस दुआ को पढ़ता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इन दुआओं को पढ़कर सिर्फ पढ़ने की हद तक महदूद ना करें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इस बात का एतराफ़ करें, इस बात का को एक्सेप्ट करें कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को तस्लीम करें कि बेशक वही पाक है, वही पाक कमाल है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही करम करने वाला है, वही आसानियाँ देने वाला है, और हम हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। बेशक कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में अगर हम किसी मुश्किल में घिर जाते हैं तो उसके पीछे रीज़न अल्लाह की ज़ात नहीं होती, बल्कि हम हैं जो अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म करते हैं, हम हैं जो अपने आप के साथ बुराई करते हैं, हम हैं जो अपने आप को मुश्किलात में घेर लेते हैं, हम ही हैं जो अपने आप को मुश्किलात में डाल देते हैं, ऐसे आमाल करके, ऐसी गुफ्तगू करके, ऐसी हरकत करके, ऐसे रास्ते पर चल के जो सिराते मुस्तकीम नहीं है। अगर हम अल्लाह के सही रास्ते पर चलें, अगर हम वो करें जो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करना सिखाया है, तो हमारी ज़िंदगी बेइंतहा आसान हो जाए। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेसिक असूलों पर भी चलाएं कि किसी को दुख ना दें, किसी को परेशानी ना दें, किसी के लिए मुश्किलात का बायस ना बने, हमारी ज़बान से किसी को रंज ना हो, हमारी गुफ्तगू किसी को दुख ना दे, हमारा होना यानी हमारी प्रेजेंस जो है वो लोगों के लिए खुशियों का बायस हो। फिर आप देखें कि अल्लाह हमारे लिए कितनी आसानियाँ करता है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हमने अपने ऊपर जुल्म किया, बेशक हमने रब का कहा ना माना, बेशक हमने। तो जब घरों में आयत करीमा पढ़ाएं, एक एक दफ़ा जब आप ये तस्बीह कर रहे हो तो याद करें कि आपने अपनी ज़ात के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर, अपने ऊपर कहाँ कहाँ जुल्म किया है, फिर उसको क्या करना है, फिर उसको अनडू करना है। And once you will start undoing all that, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी की जो उलझने हैं, जो गिरहें हैं, वो टूट जाएंगी, वो खुल जाएंगी, और आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। और याद रखिए
If you want ease in your life, you have to give ease. جو دیں گے وہی ہاتھ آئے گا، باقی سب ادھر رہ جائے گا. سو اپنا خیال رکھیے. یہی آج کی کہانی تھی. یہ آج کی کہانی یہیں تک تھی. باقی کی کہانی کل سنائیں گے. اپنا بے انتہا خیال رکھیے. لک آفٹر یور سیلوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.